बिल्डिंग आपने कितना क्या कॉम्प्लीकेट किया होगा. Just give one example. Now, this building would be located in any building. कैसा है थोड़ा सा नीचे हो सकता है, थोड़ा सा ऊपर हो सकता है, थोड़ा राइट हो सकता है, कैसे भी हो सकता है. But how do we tell the contractor that you have to construct the building exactly at this spot? The way you would draw in your plan. So for this, first of all, you should name the corners of the plot. So जहाँ से भी आपको corners identify कर पा रहे हैं, okay, जहाँ से भी lines bend हो रही है plot lines, identify करके आप clockwise direction में उसको naming कर दो. A, B, C, D, E, F, G, H. इसमें से कितना याद रखना, I यूज मत करो और O यूज मत करो. Don't use I approach. I can be sometimes confused with 1 and 2 can be confused with 0. So know whether it is a sectoral plan or a setting of plan, I and O avoid करो. तो जैसे A B C D F G H तक आगे, H के बाद एक अल्फाबेट है I. तो अगर अभी तो यहाँ कॉर्नर है नहीं, अगर कोई रहता था कॉर्नर तो उसको I नहीं करते थे, we go to the next level. J में. Now similarly, you can number these corners of the building also. So you could name them as P, Q, R, S, T, U, V, X, plus corners of the building. Okay. And this is one method. So already P a correct method, only method. If you want, you can number them as R1, R2, R3, R4, A1, A2. But whatever you follow, whatever you decide to do, आपको वही फॉलो करना है. वो आपको ये सिंपल होता है, ABCD होता है. Now, if you have an odd shaped building, whether this is let's say a regular shape would be a square or a rectangle. These are regular shapes. So what we try to do, अगर आपका ज़्यादा भी ये सब ऑफसेट करके ऐसा कुछ मिला है, आप सीधा क्या करो, पहले तो उसको आप डॉटेड लाइन ड्रॉ करके उसको एक रेक्टेंगल में इंस्क्राइब करो. जस्ट कंप्लीट है. तो ऐसा अगर आपने किया तो ये आपका एक रेक्टेंगल बन गया. उसमें आपको चाहिए तो आप इसको आप R1, R2 ऐसे नंबरिंग दे सकते हैं. These 2 points are additional apart from the main building. आपका building कितना है? ये आपका building. Just to locate the building, we take help of R1 and R2. See to it that provide the rectangle. ठीक है? उसके बाद हम क्या करेंगे? We try to locate all of these points. All of these points we try to locate. First, we try to locate the rectangle, which is R1, S, R2, X. इसको पहले locate करेंगे. 4 पॉइंट. ये 4 पॉइंट locate हो गया ना, तो फिर आपका काम आसान हो जाएगा. ठीक है? तो पहले उसमें से क्या करना है? कोई भी अगर rectangle को locate करना है, तो अगर आप उसको 3 पॉइंट्स locate करते हो, 1, 2 और 3. सपोज आप इसको locate कर दिया आपने, ये वाला locate कर दिया और ये वाला locate कर दिया, तो ये चौथा पॉइंट करना easy हो जाएगा. So, and if you want to check, then the diagonal is very helpful in checking whether it is a proper rectangle or not. Whether it means whether you have dropped this 90 degrees or not. Rectangle में इसका 90 डिग्री होना जरूरी है. Geometry, correct? So, ठीक है. तो पहले R1 से शुरू करते हैं. R1 को लोकेट करने के लिए नियरेस्ट जो कॉर्नर है आप उसका यूज कर सकते हैं. नियरेस्ट कॉर्नर. Nearest corners of the plot. R1 से R1 is a building corner, imaginary corner है. But nearest building corner कौन सा है? A, H. Comparatively ये नज़दीक है. काफी रोज. So we can use these 2 points to locate. Okay. So what you can do from A, we'll have one connection. आप यहाँ से डॉटेड लाइन ड्रॉ करो.
यहाँ से डॉटेड लाइन ड्रॉ करना, डायमेंशन इसके ऊपर मत लाना, इसको डॉटेड लाइन बना देना पड़ेगा, ठीक है। ये डॉटेड लाइन बनाओ और इसका जो भी डायमेंशन है वो डायमेंशन लिख दो, जैसे डायमेंशन फिर डी 5 मीटर 6 मीटर ओके। आफ्टर दैट you can take another from here, जो भी इसका डिस्टेंस होगा, to get a point we need two lines का इंटरसेक्शन, ये दो लाइन का इंटरसेक्शन है वो आपको चाहिए, जो पॉइंट चाहिए। After this, what you can do, you can take a third dimension just to check. Okay. So you can either drop a perpendicular from here, or you can, let's say you can drop a perpendicular from here, but on side you don't know whether this is a perpendicular or not. This is D3, it's a dimension. So what you can do, this you can name whatever. You can name this, let's say name this as JW. J1 नाम से इसको, ओके। ये तो A है, ये H है, इसको J1 नाम दो। I will give this dimension. तो साइड पे मैं कॉन्ट्रैक्ट करके बोल सकता हूँ कि तुम ये डायमेंशन D4 प्लॉट करो, प्लॉट में उसके बाद ये D3 डायमेंशन में देगा, जस्ट चेक। ये पॉइंट से डायरेक्ट D1 लो, यहाँ से D2 लो, ये लो, ये चेक करो, ये हो जाएगा। So at least, so one dimension D3 over here becomes a, so D3 over here becomes a check dimension. Check dimension. Check, check करने के लिए. Okay. आप इसको चेक इसी तरीके से कर सकते हो। ये परपेंडिकुलर होना ऐसा जरूरी नहीं है। Only thing is कि you want to take this distance and then measure this distance. Same way you can do with S. We said ना लोग 4 कॉर्नर पे प्लॉट करते हैं। इसके लिए करना तो नजदीकी कॉर्नर है C और एक है B, तो उसमें से आप देख सकते हो ये हो गया आपका डायमेंशन D5, हो गया आपका डायमेंशन D6। आपको अगर इसमें से चेक करना है तो आप इसमें से यहाँ पर चेक कर सकते हो, ठीक है। वेट से इधर करके तो ड्रॉप परपेंडिकुलर ऑन दैट लाइन, बट यू कैन टेक दिस डिस्टेंस, सो दिस कैन बिकम J2 या फिर D7 and you can check. Similarly for this one, here from here, you want to have a check dimension, you have a check dimension. Same goes for this one. Nearest corners ये है और ये आपको चेक देना था, यहाँ से भी चेक कर सकते, यहाँ से भी ये डायमेंशन आपको देना पड़ेगा। Ideally, yes, you have to give this dimension also. ये डायमेंशन बेसिकली आपको प्लॉट के डायमेंशन होने चाहिए, प्लॉट का सारा डायमेंशन आपको दे देना है, टोटल डायमेंशन चाहिए। प्लॉट के डायमेंशन देने प्लस जहाँ पे भी आप ये सब कर रहे हो ये डायमेंशन आपको देना है, यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, ये कितना है, ये कितना है, ये सारे डायमेंशन आपको एंड दिस डायमेंशंस। तो जब भी आप ये सब करते हैं तो भी आप लोग क्या करते हैं, आप डायमेंशन लाइन इस पे करते हैं, इसी पे डायमेंशन डालते हैं, ऐसा मत करो। डायमेंशन ऐसा इसके ऊपर डायमेंशन लाइन वहाँ पे लिखो डायमेंशन, clearly indicating that the dimension of this line is this, जो भी आप ऑटोकैड में कर रहे हो। डायमेंशन अलग से, डायमेंशन लाइन इज नॉट सपोज टू बी लाइन, इट इज रेफरेंस, उसके ऊपर डायमेंशन लिखा होगा कि कहाँ से कहाँ तक का डायमेंशन। लाइन आपको डॉटेड लाइन ही अलग से ड्रॉ करनी है सबसे पहले, ठीक है। नाउ वी हैव आइडेंटिफाइड दीस 4 पॉइंट्स R1, S, R2, X। दीस 4 पॉइंट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, राइट। उसके बाद इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है उसको आइडेंटिफाई करना भी इजी है। उसको कैसे कर सकते हो, उसके लिए सिंपल है। उसके लिए ये तो एक बार रेक्टेंगल आपको मिल गया तो रेक्टेंगल के ऊपर आपको सिंपली ये मेजर करना है, ये कितना है और ये कितना है। उसके ऊपर आपको ये डायमेंशन मेजर करना है, ये कितना है, ये कितना है, ये कितना होगा, ये कितना होगा। ये डायमेंशन आपने इसके ऊपर डाल दिए,
then it is easy to plot this. अभी सब लोग ये पॉइंट Q और पॉइंट U, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मेजर करने के लिए आपने ये डायमेंशन मेजर किया, ये डायमेंशन मेजर किया, ओके, और ये डायमेंशन मेजर किया, आपको तो ये मिला, ये मिला, ये मिला, ये तो नहीं मिला, करेक्ट, ये नहीं मिला, ये मिलने के लिए आपके पास ये 3 पॉइंट्स हैं, जैसे मैं आपको बोल रहा था ना, एक रेक्टेंगल बनने के लिए 3 पॉइंट्स काफी है, आपके पास ये 3 पॉइंट्स हैं, तो आपके डायगोनल चेक कर सकते हैं, ओके, this diagonals you can check, then you can get a rectangle over it. So which means you can check this diagonal, you can check this diagonal. We plot this one. Another method है, तो अगर diagonal नहीं करना है, ये dimension आपको पता है, ये कितना है, ये अगर rectangle है मेरा perfect rectangle बैठ गया, ये dimension मैं यहाँ पे भी plot कर सकता हूँ, करके मैं यहाँ पे line भी लिख सकता हूँ side पे. उसके बाद मुझे ये डायमेंशन पता है, एग्जैक्टली ये डायमेंशन ट्रांसफर करूंगा तो मुझे मिल जाएगा. सिंपल. एक बार आपने रेक्टेंगल प्लॉट कर दिया, देन इंटरनली कितने भी ऑफसेट ले आओ, वो करना आसान है. आप हर एक को अगर ऐसे करते बैठो, अभी इमेजिन अगर ये रेक्टेंगल हम नहीं बनाते थे, इमेजिन ये जो डॉटेड लाइन बना है ना ग्रीन कलर का, ये नहीं बनाया, सपोज अज्यूम नहीं बनाया, तो क्या कितना मेहनत करना पड़ता है. ये पॉइंट आपने ट्रेस किया, फिर इसको करना पड़ता है, फिर इसको करना पड़ता है, ये मेथड से, ट्रायंगुलेशन मेथड से. तो मालूम होगा ना ट्रायंगुलेशन कैसे होता है. तो इसके लिए आप ट्रायंगुलेशन उसी के लिए करो जो रेफरेंस के लिए चाहिए, उसके बाद अंदर का जो है वो आप उसी को प्लॉट कर सकते. एक बार आपका रेक्टेंगल बैठ गया, अंडरस्टूड द पॉइंट. ये मेथड समझा आपको क्या करना है, सेटिंग करना इजी है. ड्राइंग मेहनत तो साइड पे होता है, तो ड्राइंग तो आसान है, बट ड्राइंग में डायमेंशन होना जरूरी है. अगर ड्राइंग में डायमेंशन मिस हो गए और साइड में कैट फाइल नहीं भेजते, प्रिंट आउट भेजते, तो आप PDF भेजते हो कॉन्ट्रैक्टर को, आजकल कॉन्ट्रैक्टर प्रिंट कर देते, तो वो साइड पे लेके जाएगा, उसमें डायमेंशन अगर मिसिंग होगा तो कुछ नहीं कर सकते. तो आप खुद ही साइड पे हो, तो आपको कंप्यूटर लेके जाना पड़ेगा साथ में. ठीक है. So you understood? या प्लान मध्ये कोऑर्डिनेट्स द्यायची जरूर नाही आहे. प्लॉटचे जे वो कोऑर्डिनेट वाला बताया नहीं मैंने आपको. हाँ, नहीं वो बताया नहीं. प्लॉट वाला सेटिंग में बताया नहीं. डिमार्केशन प्लॉट वाला बताया नहीं. बिल्डिंग सेटिंग हो जाता है. वो बताना पड़ेगा. हाँ वो एक रहेगा ना. हाँ. नहीं मैंने लिस्ट लिखा है तो वो रहेगा. मुझे लगा ले आया. Okay, so there is one more drawing. There is a plot demarcation plan. Sorry, I missed that. सबसे पहले plot demarcation plan. 1911 में देखते हैं. सर भी बता रहे हैं. There is something called coordinates. Look at that also. So this is the building setting out plan. Now we will look at the plot demarcation. Now plot demarcation plan is how do you identify that your plot, whatever plot you have got, is correct. आपको मिला है और जिसका बनाना है, because on your drawing you have a plot, cat drawing, ठीक है, और उसको अगर आपको साइड पे चेक करना है
before you place the building, because अगर आपका प्लॉट की साइड का अलग है और ड्राइंग का अलग है, तो बिल्डिंग तो जैसा बैठेगा ही, जैसा ये डायमेंशन कितना भी डायमेंशन चाहिए तो भी मैच नहीं करेगा, राइट? पहले आपको प्लॉट डिमार्केशन प्लान करना है. So here also, I mean, we use something called the coordinate system. Coordinate system is simply there is an x-axis and there is a y-axis, correct? X-axis है, y-axis है. ये जो उसका जंक्शन है वो 0 0. ये तो आपने बेसिक मैथ्स वगैरह में पढ़ा ही होगा, ठीक है? Now if there is a point here in space anywhere over here, then आपको पता है कि उसका एक x coordinate होता है. That is the distance from 0 0 to here. एक x coordinate होता है उसका डायमेंशन, यानी x एक्सिस में ये पॉइंट कितना दूर है 0 0 से. सिमिलरली इसका एक y एक्सिस पे उसका डायमेंशन होता है, which is 0 0 से y एक्सिस पे कितना दूर है. सो यू कैन प्लॉट दिस पॉइंट. ये तो मैथ्स में वगैरह किया होगा स्कूल में प्राइमरी में, ठीक है? सो देन इसका ये पॉइंट है, लेट्स से O या लेट्स से पॉइंट इज A. ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट आता है x1, y1. Similarly, if you remember number line में this is the x-axis and this is the y-axis. ये 0 0 है. अपने नंबर लाइन पर होगा प्लस राइट साइड में तो प्लस होता है 1 2 3 4 so on and so forth. लेफ्ट में आगे तो माइनस दिया गया है, -1 -2. वैसे आप अगर ऊपर जाते हो प्लस 1 2 3 4 होता है, और आप नीचे आते हो तो -1 -2 y एक्सिस पे. x एक्सिस पे भी प्लस है, y एक्सिस में भी प्लस है ऊपर, नीचे माइनस. तो ये दो बेसिक जो आपको स्कूल में सिखाया गया है उसका आपको यूज करना है, ठीक है? नाउ इन दिस प्लॉट लाइक वी नेम दिस A B C D हमने यहाँ से नेम किया था A B C D क्लॉकवाइज डायरेक्शन E F G ऐसा अपने नेम. असं नेमिंग करताना पॉइंट्स जर जास्ती असले तर आय द्यायचा नाही. आई और O. आय अँड ओ. अभी तो यहाँ लगी एच पे रुक गए, आई आता तो आई नहीं है जे. So then now E F G. So now you have to this point is important. अगर आपको नेगेटिव ये अवॉइड करना है, so it will not be possible everything. So for example, what I mean is, अगर आपके पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ये परफेक्ट रेक्टेंगल वेयर केस है तो हो सकता है प्लॉटेड डेवलपमेंट. सो उसमें when you are naming A B C D नाम का clockwise direction. So it is very simple. I consider that okay, ये x axis और y axis में बढ़ गया है, you know, so this A can become 0 0. Okay, A becomes 0 0. अब इसमें B का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? B is on the y axis, but वो x axis से हिला ही नहीं ना पॉइंट. x axis से इसका कोई डिस्टेंस है ही नहीं, तो इसका x axis becomes 0 B का, ठीक है? And y axis will be whatever. Let's say ये D1 है, D2 है, D3 है, तो D4. These are the sizes of the rectangles. Okay. So this will be 0, D1. Because B जो point है वो y axis पे D1 distance पे, distance दूर है 0 0 से. But x axis से वो दूर है नहीं. 0 0 x axis पे शिफ्ट ही नहीं है. It is 0, D1. C point का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? D1 D2 D4 कैसे होगा? अच्छा सॉरी चलो D1 and D4 ये दो रेक्टेंगल सेम है. हाँ तो D4 x एक्सिस पे D4 शिफ्ट हुआ है, कॉमा D1. Then what about D?
D अभी 0 0 D4 0. हाँ D4 इतना डिस्टेंस शिफ्ट हुआ है x एक्सिस पे, बट y एक्सिस पे तो ऊपर उठा ही नहीं है, उसी पे बैठा है D4 कॉमा 0. दिस यू अंडरस्टैंड. अभी इसमें क्या है, इसमें नेगेटिव कुछ भी नहीं है बिकॉज नथिंग इज ऑन द अदर साइड, राइट. नाउ ओवर हियर आपको 0 0 कहाँ लेना है, यू सजेस्ट कहाँ लेना चाहिए, कहाँ लेना है आपको, कहीं भी ले सकते हो आप से, ए पे लेना है तो ठीक. सो ए यू टेक 0 0 0,0, ए को 0,0, ठीक है. अभी नंबर में क्या करते हैं, जैसे ए को 0 0 लिया आपने, वैसे ही क्या हो गया, ये आपका x एक्सिस हो गया, और वैसे ही इधर आपका y एक्सिस आ गया, correct, and this becomes the crossing center 0 0. अभी b का, अभी सपोज फॉर एग्जांपल नाउ, अभी यहाँ पे मैं यूज करता हूँ b1, इसको d बोलता हूँ, चलो ये डायमेंशन दे देता हूँ, ये b2 है, ये डायमेंशन जो है वो d3 है, ये डायमेंशन है वो whatever, ये सब अभी कोऑर्डिनेट है ना, तो सीधा सीधा जाना होगा. समझ रहे हो ना क्या कर रहा हूँ. बेसिकली रेक्टेंगल जैसे बना. अभी e आपका 0 0, ओके. नाउ b के लिए क्या होगा, 0 D1. b आपका y एक्सिस पे ही है तो x पे शिफ्ट हुआ ही नहीं, 0 D1. 0, d1. ये पॉइंट समझा आप लोगों को क्या होगा, ये लगभग ऐसे ही हुआ है, ठीक है. अच्छा नाउ इट इज स्लाइटली डिफरेंट. नाउ c का कैसे होगा, c का कैसे होगा, c x एक्सिस पे 0 0 से कितना शिफ्ट हुआ है, D2 D3 d2 के d3 D3. और y एक्सिस पे कितना शिफ्ट हुआ है, d1 प्लस D2. जो भी आता हो, d1 प्लस d. आई जस्ट राइट d1 प्लस d. तो हमने ये नहीं लिया, नंबर्स नहीं लिया, d1 प्लस d. ये समझा कि इसको कोई है तो नहीं समझ रहा है, बेसिक ये मैथ्स है ना. फिर b का कैसा होगा, कैपिटल d का, अभी x एक्सिस से कितना शिफ्ट हुआ है, D3 plus d3 D4. प्लस d4 शिफ्ट हुआ है, d3 प्लस d4 शिफ्ट हो गया, ठीक है, जितना भी मीटर होगा. एंड y एक्सिस पे 0 0 से कितना शिफ्ट हुआ है, D1 plus D2. d1 प्लस d2, d1 प्लस d2. सेम वे टू फॉर e. आप बताओ, आगे बताना मुश्किल है यार का डायमेंशन दिया नहीं है, चलो ठीक है, यहाँ का मैं देखो d बार, आपको ये डिस्टेंस लगेगा 0 0 से कितना ऊपर गया, किस पे, y एक्सिस पे. x एक्सिस पे कितना गया वो तो देख सकते हो आप, 10 9 8, या फिर दिस व्हाटएवर. समझ गए ना, यहाँ से लेकर आपको डिस्टेंस नापना है, ठीक है, दैट इज राइट. एंड देन सेम फॉर दिस एंड दिस. आपको समझ गया कांसेप्ट समझा. हाँ नहीं ये माइनस में जाएगा, ये माइनस में जाएगा, f will go माइनस, सी f is below this line, करेक्ट. सो f का x एक्सिस का जो फिगर है वो पॉजिटिव रहेगा बिकॉज वो नंबर लाइन से राइट साइड है, तो 0 0 से ऑरिजिन से राइट साइड है. बट ये y एक्सिस पे ऑरिजिन से माइनस में गया, सो ये f अगर ये d11 डिस्टेंस दिया ना जो आपको उतना डिस्टेंस होगा, इसका ये जो भी आएगा x वाला ये माइनस d11 y एक्सिस पर फिगर. सेम फॉर g, सेम फॉर g. x एक्सिस में तो उसका नंबर पॉजिटिव आएगा, बट y एक्सिस में उसका नेगेटिव आएगा, माइनस d11. नाउ इफ you would have taken this as 0 0,
लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको पूछा तो आपने बोला कि 1 और 0 0 चाहिए आपको, अगर कोई बोलेगा नहीं भाई मुझे ये 0 0 0 तो उसके केस में क्या हो जाएगा, उसके पास ये जो है A H B C ये सारे के x एक्सिस की माइनस में है, तो दैट टेल्स यू कि आपका ओरिजिन से ये लेफ्ट में है कि राइट में। तो जनरली आपको अगर जो मतलब इसमें क्या है x एक्सिस माइनस में आएगा फिगर, बट सबके सब y एक्सिस प्लस में है। इसमें क्या हुआ, इसमें दो के x y एक्सिस x एक्सिस so either way it doesn't make any difference, but whatever you take as origin for your plot, ये तो मैंने hypothetical example दिया आपको, आपका जो भी plot है आपको उसमें ये concept apply करना होगा। डायमेंशन जैसे ही लिखना है आपको A B C D जो भी पॉइंट लिखोगे उसके कॉमा करके डायमेंशन लिखना है। प्लस या प्लस में तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस में तो माइनस लिखना है। H सेंटर में कहाँ है, H का y एक्सिस 0 है, एक्सिस पे 0 है। अरे अभी तो ये क्या सर अभी मैं आपको सिंपल एग्जांपल इसलिए पहले दिखाया ना, नहीं in this plan you will show only the plot, you will show only the plot, in this we will not show the building, so this is called a plot नाम लिख लो ठीक से, क्योंकि आपको शीट का टाइटल लेना होगा प्लॉट डिमार्केशन प्लान है। और ये जो और हाँ फिर आपको इसमें इसके प्लॉट के डायमेंशन तो ऑब्वियसली लिखना ही है, प्लॉट के डायमेंशन लिखना है, ये प्लॉट के डायमेंशन लिखना ही है। और in the building setting out plan you will show the plot with all the plot dimensions, then you will show the building block, then I know कि आपके सबके प्लान में कुछ ना कुछ ऐसे ऑप्शंस है, तो इसी का सीधा पता रेक्टेंगल तो है नहीं, आगे पीछे है, फिर आप उसको डिस्क्राइब करो इमेजिनरी रेक्टेंगल में 4 कॉर्नर्स प्लॉट करो, प्लॉट करके उसके फिर अंदर के जो भी ऑप्शंस के डायमेंशन है वो, एंड आपको रेक्टेंगल्स जब चेक करना है तो आपको डायगोनल देना जरूरी है, वन डायमेंशन इज रिक्वायर्ड, चेक डायमेंशन ऑलवेज दोनों देना, कोई बात नहीं, दोनों सेम होना चाहिए, एक दे दो दोनों सेम, to check whether everything is perpendicular to each other, all the four lines. दोन्ही शीट्समध्ये तुमचा रोड कुठे आहे ॲक्सिस तो दाखवायचा, दोन्ही शीटमध्ये स्केल घ्यायचं, दोन्ही शीटमध्ये नॉर्थ दाखवायचं, ओके नॉर्थ इज कंपल्सरी, कारण तुम्ही हे सगळं द्या पण जर नॉर्थ नाही दिली तर त्याचं ओरिएंटेशन कसं आहे हे काही कळणार नाही। ये रोड और नॉर्थ हाँ रोड तो रोड भी 12 मीटर वाइड रोड व्हाटएवर also write the building also. हे रोड सुद्धा दाखवताना बऱ्याचदा तुम्ही मुलं काय करतात की समजा ही साईड आहे याला रोड आहे लिहिलं, तर बऱ्याचदा तुम्ही लोक याच्याच लाईनमध्ये छोटी लाईन सोडून देतात किंवा ही मारत पण नाही, हे असं नाही करायचं, हा रोड कसा गेलाय पुढे हे पण दाखवलं गेलं पाहिजे, ठीक आहे, किंवा समजा इथं नसेल हा असा गेला असेल तर तुम्ही हे दाखवायला पाहिजे। आणि नॉर्थ म्हणजे या प्लॉटचं ओरिएंटेशन काय आहे, उलटा आहे का सुलटा आहे, मागच्या वर्षी काही जणांनी उलटे